तो हेलो गाइस, तो भाई बीजेपी ने जिस प्रकार से अपने सुप्रीम लीडर का इमेज मेकओवर किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। कि ज्यादातर हमारे यहाँ मीडिया का उपयोग ये हुआ है, ज्यादातर एक कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने आगे आके मीडिया का काम संभाला। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 50-50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी रोज 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है नहीं, पूछने के लिए तो कुछ भी नहीं। पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठे उनसे सवाल करने के लिए। प्रधानमंत्री लगातार इस इंटरव्यू में गलत बयानी करते रहे, मगर इन चारों पत्रकारों में से एक भी पत्रकार ने काउंटर सवाल नहीं किया। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। तो फिर इसके काउंटर में मोदी जी ने इन चूतियों को मैदान में उतारा, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की आलोचना करने वालों को गालियां देना है और मोदी जी की चाटुकारिता करते रहना है। लेकिन मोदी जी को कहीं न कहीं कुछ और कमियां नजर आई, तो फाइनली मैदान में उतरे इंडियन पॉडकास्टर। भाई इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि Now every motherfucker has a podcast. और ब्रो पॉडकास्टर्स की लिस्ट में अनगिनत नाम है, पर इसमें सबसे ऊपर है पियर बाइसेप्स। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। कुछ भी। तो भाई अगर इसकी जर्नी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया था। बीच बीच में दारू पीने के फायदे बताने लगे। So how do you enjoy a drink but not get fat at the same time? Top 3 tips. When I'm drinking myself, I make sure the only mixer I use is either water or soda without any sugar. Beer gives you beer biceps. बड़ा हरामी हो बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लड़की पटाने के तरीके बताने लगे और जब सब कुछ से पेट भर गया तो फिर पॉडकास्ट अम्बक बाबा से स्टार्ट कर दिया। Look, I can do this. सुन ले, कुछ मत बोलना। Look, my hands are here. He showed like this. My hands are here. Look here. So he said here like this. Then he did like this. Then he produced one Rudra. And he said, here my name and I will make a hole for you. Yes sir. Yeah. My God, for the audio listeners, Rudraksh got created out of thin air. I'm a little speechless, so sorry. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो भाई इसके पॉडकास्ट में कोई भी आ जाए, कुछ भी कंस्पिरेसी थ्योरी बता के चला जाए, he don't give a fuck about it. Comes to the treatment aspect, there are so many things prescribed. Maybe a kind of alopecia that can be treated with scratching with a particular leaf. What? Yeah, that's the way to stimulate, to ward off the clogged kabhadosh that is blocking the hair follicles to grow. ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। And seeing this behavior, government of India ने सोचा, guys look, he just listen to whatever people say. He never cross question to anyone in podcast. He is like a young Akshay Kumar, but on YouTube. He also praises Hitler, so why don't we use it? And now, the darkness holds dominion. Are you doing this podcast today? I have no idea. You know, Vikings would always invade with the women as well. Okay, all right. Why are you doing this podcast? You know, I'm doing this podcast one because I like you. Huh? Let's look for seeing you as the most successful YouTuber in the country, if not the world. Thank you. Or the first YouTuber who switches to politics and gets mentored by Piyush Goyal to like. It's an interesting proposition. You got me there. So let's go for Mr. Allahabadia joining politics soon. Listen, I've been in the acting business. I know a hustler when I see one. अरे चाटना है, चाटिए जितना चाटना है, चाट के लाल कर दीजिए। So ये पॉडकास्ट करता है गवर्नमेंट के सपोर्ट से। Something called mygovernment.india. mygov.india is Government of India citizen engagement platform. It's a part of Digital Media Corporation, Section 8 company, come under IT sector. मतलब it's run by using our taxpayer money. ये भगवान क्या जुल्म है। And एक और रिपोर्ट में they said that government did pay for their travel, lodging and boarding. So nice to them. I mean us, we taxpayer paying for their propaganda. और इसके हर पॉडकास्ट में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी।
एंड सेकेंड वन इज प्रखर के प्रवचन। भाई इसके बारे में क्या ही बोले, इसकी संदीप माहेश्वरी के साथ कंट्रोवर्सी ने इसको इतना पॉपुलर बनाया। गुस्से की आग में, बदले की आग में, अपने अहंकार के नशे में, घमंड के नशे में, ईगो के नशे में पागल हुआ पड़ा है। ये सब जानने के बाद भी, ये वीडियो के बाद भी वो माफी नहीं मांगने वाला, वो अपनी वीडियोस को नहीं हटाने वाला। पैसा ही पैसा होगा। और भाई अब तो ये जस्ट सस्ती कॉपी है बियर बाइसेप्स। और भाई मेरे को लगता है इसके चैनल का नाम प्रखर के प्रवचन से ध्रुव के प्रवचन कर देना चाहिए, क्योंकि हर पॉडकास्ट में ये एक ही कॉमन सवाल पूछता है। Pretty sure you've heard of his name. His name is ध्रुव राठी। और ध्रुव का मैसेज आया? नहीं, ध्रुव का भी नहीं आया मैसेज। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बट नहीं आया। जितना वायरल हुआ उस हिसाब से आना चाहिए। उसने देखा तो पक्का होगा। हिज हाइनेस ध्रुव राठी हैं। उसका जो पूरा डिक्टेटरशिप वाला एक जो एंगल निकला इंटरनेट पे, उससे कोई वोटिंग में डिफरेंस? जीरो। तो पहली बार तो ही इज व्हाट आईटी सेल मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। और मैं ये पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। और यू कैन चेक एवरी ट्वीट एंड यू कैन मैच इट विद द स्टैंड्स टेकन बाय द इंडियन ऑपोजिशन पार्टी। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अगर ध्रुव राठी आज की तारीख में देश के किसी कोने से भी चुनाव लड़ लेना, जितने उनके व्यूज आ रहे हैं ना, उसका 1% वोट उनको नहीं मिलेगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। और भाई लिटरली इसने इस बंदे को बुलाया है। मतलब सीरियसली, इतने बड़े देश में इतने इंटेलेक्चुअल बंदों को छोड़ के तुझे बुलाने के लिए यही बंदा मिला था? यही आदमी जो पहले ऐसे नाच नाच के रिपोर्टिंग करता था, जिसकी वजह से इसने थप्पड़ भी खाए और फिर बाद में चल के एक न्यूज चैनल का एंकर बना। सरेंडर कर दिया है। अराजक तत्व जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। एंड फाइनली बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन गया। पत्रकार प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए हैं। जेपी नड्डा ने प्रदीप भंडारी को जिम्मेदारी सौंपी है। गजब टूबीबाज आदमी हो। ये आपकी एक थ्योरी थी यूजफुल इडियट्स की, उस बारे में मेरे को बताओ। यू ऑलवेज नीड एन एनिमी। केवल एक तरफा जब होने लगेगा ना, ऐसे में क्या होता है कि अपोजिशन जिस तरह की बातें करता है ना, नॉनसेंसिकल, उसका कोई लोड ही नहीं लेता है। उस नैरेटिव के लिए ना ऐसे यूजफुल इडियट्स को बिठाया जाता है। तुम बोलो कि राष्ट्र में डिक्टेटरशिप है, जैसे जुबैर हो गया, ध्रुव राठी हो गए, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, अविसार शर्मा हो गया, द वायर हो गया, क्विंट हो गया, स्क्रोल हो गया। इन लोगों को छोड़ा हुआ है कि यार तुम कम से कम कुछ तो हमारे अगेंस्ट लिखो, जिसको हम रिबटल करेंगे फैक्ट के साथ और बोलेंगे देखो वामपंथियों ने देश को कितना बर्बाद कर रखा हुआ है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो भाई ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और विदाउट प्रूफ आप ओपनली किसी बात को नहीं रख सकते। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर रिलाई नहीं कर सकते। उस बात का आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। और भाई लिटरली ये वही बंदा है जो एक पॉडकास्ट में बोलता है कि किसी भी लॉजिक को काउंटर करने के लिए माँ बहन की गाली दे दो बस। मैं यह मानकर चलता हूँ कि वामपंथियों की सड़ंध जो है ना, उसको काटने के लिए आपको थोड़ा सा गलीच बनना पड़ेगा। उनको हवा भी नहीं लगते ना, आप सीधे माँ बहन की उनको गाली दे दो, वो अचंभित रह जाते हैं। और जब आप एक व्यक्ति देता है ना, नीचे 200 आपके फॉलोअर जाके उसको पेल के आते हैं। मैं हैरान हूँ जी। और भाई यही नहीं, ये बस ऐसे ही लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाता है और उनसे सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी के बारे में पूछता रहता है। और अगर बात करें इस चूतिए की, इसके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी इसने अपनी औकात दिखा दी थी टाइम्स नाउ पे। 2 minutes this guy saying he is joining BJP. What is this going on here? कहाँ से आया ये? सड़क छाप। 1 मिनट। आम आदमी पार्टी का 1 मिनट। आप 1 मिनट। कम ना, आजा। नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज काम डाउन। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो अब आपके मन में सवाल होगा, ये पॉडकास्टर ऐसा करते क्यों है? ये जो बंदा है प्रखर के प्रवचन सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ध्रुव राठी का यूज करता है। भाई मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आप सुनते हो सोशल मीडिया पर, उसको एक बार खुद से फैक्ट चेक करो। इन चूतियों पर भरोसा मत करो। इनको बस व्यूज से मतलब है और किसी चीज से नहीं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 बंदों को उठाया है, लेकिन अभी बहुत सारे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय। I was very bad. Always bad. Any sort. That's why we do so many podcasts today to make up for that void on the inside. Yeah. Oh my god, I'm so drunk. Yeah.